So we are starting with calendars. So what we are going to learn today, let me just give you a glimpse, just give you an idea about what we are going to learn today. Say for example, let us take today's date itself. Suppose 1st November, today is 1st of November 2022. If today is Tuesday, if the day on 1st November 2022 is Tuesday, and if you are asked to find out what day will be 25th November 2022. Question number 1. This is what we are going to learn. Then suppose you are asked to find out 25th December 2022. Then 15th August, let us say 15th August 2023. Similarly, if you are asked to find out, let us say 18th February 2028. This is what you have to find out. This is what you are going to learn in today's class, how to find out dates, not only in the same year, but also 5 years, 6 years, 10 years, 15 years down the line. If you are asked to find out, you will be able to find the solution within 10 to 15 seconds. So I am going to teach you the tricks and techniques to find out the days and the dates. This is what you are going to learn in today's class. So let's proceed. First, let us understand the basic concepts related to calendars. So, write down basic concepts. First, let us understand what do we mean by this basic concept. Basic means you all know that there are 7 days in a week. There are either 30 or 31 days in a month. Where 28 or 29 days are in February. इसीलिए February को हम एक्सेप्शनल केस बोलते हैं. फरवरी में या तो 28 डेज या 29 डेज. इसी की वजह से हमारा लीप ईयर होता है या ऑर्डिनरी ईयर होता है. तो दो तरह के ईयर्स होते हैं हमारे पास. आइदर वी हैव अ लीप ईयर और वी हैव ऑर्डिनरी ईयर. अब लीप ईयर क्या है? लीप ईयर वो है जिसमें कि 366 डेज होते हैं, या फरवरी में जहां 29 डेज हैं. आफ्टर एवरी 4 ईयर वी गेट अ लीप ईयर. ऑर्डिनरी ईयर क्या है? जिसमें 365 डेज होते हैं. जैसे अभी 2022 है, 2022 इज एन ऑर्डिनरी ईयर. अगेन 2023 इज a ordinary year, but 2024 will be a leap year. So how do we determine or identify whether a given year is a ordinary year or a leap year? कैसे पता चलता है बच्चों कि हमें जो गिवन ईयर है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? तो उसके लिए सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं, यानी 4 से डिवाइड करके देखते हैं किसी भी नंबर को. अगर कोई ईयर हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा गया बताओ कि 2024, 2021, 1999, 2018, 1996, इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है और कौन सा लीप ईयर है. सो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट विच इज एन ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर? सी 2024, सिंस 24 इज डिविजिबल बाय 4, सो वी कैन से दैट दिस इज अ लीप ईयर. तो लीप ईयर के लिए क्या कंडीशन है? इट शुड बी डिविजिबल बाय 4. इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, if any particular year, if it is completely divisible by 4, then we can say that it is a leap year. Similarly, 2021, we know that divisibility test of
4 डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? फॉर कोई भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर हो, 2, 0, 8, 6, 9, 6, लेट अस से, अगर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पे जो नंबर है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, अगर ये डिविजिबल बाय 4 है, देन दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4. इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर प्रेजेंट एट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस combined together, this is 96. If 96 we know that it is divisible by 4, that means this entire number is divisible by 4. So 21 is not divisible by 4, so this is an ordinary year. It is known as ordinary year. 1999 again ordinary year. 2018 again ordinary year. However, 1996 will be a leap year. So I hope you all have understood how we determine whether a given year is a leap year or an ordinary year. And we know that a leap year has 366 days and ordinary year has 365 days. Leap year means February will consist of 29 days and February will consist of 28 days. This is leap year and ordinary, and remaining months you already know. If you like keep your fist like this, the months coming on your knuckles has 31 days. January, then in this depression 30 days. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. तो जो भी नकल्स के ऊपर आ रहे हैं उसमें 31 डेज है, एक्सक्लूडिंग फेब्रवरी. अगर फेब्रवरी को छोड़ देते हैं तो बाकी सारे जो भी आपके नकल्स के बीच में जो लाई कर रहे हैं उसमें यू हैव 30 डेज. सो नकल्स के ऊपर 31 डेज, जो बीच में आ रहे हैं नकल्स के बीच में, अगर वहां पे फॉल कर रहा है मंथ, तो देयर वी हैव टोटल 30 डेज. तो ये सिंपल, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नई बातें हैं, लेकिन ये सारी चीजें को हमें जानना जरूरी है बैकग्राउंड में अगर कैलेंडर्स को करना है. इसके साथ नाउ यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज. व्हाट आर दीज ऑड डेज? Now again a very important concept, and the student who will understand the concept of odd days will understand the entire concept of calendars. पूरा का पूरा कैलेंडर टॉपिक बच्चों इसी ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ऑड डेज का मीनिंग क्या है? इट हैज नथिंग टू डू विद ऑड नंबर्स. इट हैज नथिंग टू डू विद ऑड नंबर्स. तो ऑड डेज का मीनिंग क्या है? ऑड डेज का मीनिंग है the number obtained after dividing a number by 7. Say for example, the number, in fact instead of number kindly write the remainder obtained. The remainder, instead of number kindly write the remainder. The remainder obtained after dividing a number by 7. Say for example I am writing 36. If I divide 36 by 7, what is the remainder I am going to get? See, 7 5s are 35. Quotient is 5, but remainder that I'll get is 1. 1 is the remainder. So this is known as odd days. जब भी हम कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे और मैं बोलूंगा इसके ऑड डेज फाइंड करो, इसका मतलब है उस नंबर को आपको 7 से डिवाइड करना है एंड द रिमाइंडर दैट यू विल गेट इज नोन एज द ऑड डेज. इसी तरीके से अगर बच्चों मैं बोलता हूं 28 है, 28 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 7 4 28, ऑब्वियसली रिमाइंडर विल बी 0. इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं 19 को 7 से डिवाइड करो या ऑड डेज फाइंड करो, 19 डेज है, इसके ऑड डेज फाइंड करो, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 5. ये रिमाइंडर है आपके पास. सो आई होप ऑड डेज आर क्लियर टू यू. ऑड डेज आर क्लियर. जब भी ऑड डेज, बिकॉज आई विल बी फ्रीक्वेंटली यूजिंग दिस टर्म फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज. तो जब भी हम ऑड डेज की बच्चों बात करेंगे
तो वहां पे आपको उस पर्टिकुलर नंबर को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है आपके पास, उस रिमाइंडर की बात हो रही है, उस रिमाइंडर की बात हो रही है। और 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? वाई आर वी डिवाइडिंग बाय 7? वाई आर वी डिवाइडिंग बाय 7? बिकॉज 7 डेज होते हैं, संडे से लेके और सैटरडे तक हमारे पास टोटल 7 डेज होते हैं। और डेज जो है वो आइटरेशन है, साइक्लिक है। आफ्टर एवरी 7 डेज दिस साइकिल विल रिपीट। अगर आज ट्यूसडे है तो 7 डेज के बाद फिर ट्यूसडे होगा, तो ये आइटरेशन है। फिर उसके 7 डेज के बाद फिर ट्यूसडे होगा। इसीलिए 7 डेज का साइकिल है, 7 डेज का साइकिल है। तो कैलेंडर में जब भी हम ऑड डेज की बात करेंगे तो आप 7 से उसको आप डिवाइड करेंगे। 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास I think somebody has shared the screen. Okay, fine. So I hope it's clear till this point कि जब भी हम ऑड डेज की बात करेंगे तो ऑड डेज का मतलब है, ऑड डेज का मीनिंग है रिमाइंडर। ऑड डेज मींस रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7। सो फ्यू एग्जांपल्स आप लोग खुद ट्राई करो जरा और मुझे बताओ फटाफट कि अगर if 30 डिवाइड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 31 डिवाइड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 29 डिवाइड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 365 डिवाइड बाय 7, 366 डिवाइड बाय 7 and 25 डिवाइड बाय 7. Kindly give me the answer. Chat box is open for you all. You all can give me your answer through chat box. You can also tell me your answer. आप prompt भी कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं अपने answers को. 30 divided by 7, 7 4s are 28, so 2 will be the remainder. 31 divided by 7, 7 4s are 28, 3 is the remainder. 7 4s are 28, 1 is the remainder. 7 5s are 35, 1, 7 2s are 14, so 52 complete weeks and 1 is the remainder. Similarly, 2 will be the remainder, 7 3s are 21, 4 will be the remainder. So this 2, 3, 1, 1, 2, 4, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? These are known as odd days. These are known as odd days. So odd days में इट्स नथिंग टू डू विद ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इसमें सिंपली आपको जो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ऑड डेज। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बेस्ड अपॉन दिस नाउ वी कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस पे चल सकते हैं डायरेक्टली। इस कॉन्सेप्ट को हाउ वी विल अप्लाई इन क्वेश्चंस, जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड। काइंडली टेक अ नोट ऑफ इट। यहां तक अभी जो मैंने पढ़ाया इसको लिख लीजिए। Let us take today's date. If 1st November 2022 is Tuesday, what day will be 25th November 2022? This is what you have to find out. तो देखो बच्चों, एक तो सिंपल तरीका है, सिंपल IQ लगा के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कुछ बच्चे, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछेगा। एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो 4 साल के बाद 5 साल के बाद का
आपसे डेट पूछेगा। यहां तो कोई बच्चा डायरेक्ट भी निकाल सकता है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप देखो, अगर 1 नवंबर को, इफ 1 नवंबर इज ट्यूसडे, तो अगला ट्यूसडे कब आएगा? ऑब्वियसली 7 ऐड कर दोगे, यानी 8 को आएगा अगला ट्यूसडे। फिर इसमें इफ यू विल ऐड 7, 15th को आएगा अगला ट्यूसडे। 15 में अगेन इफ यू विल ऐड 7, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग 7, आई एम एडिंग 7, 15 प्लस 7 इज 22। सो 22 को मेरे पास क्या आ गया? ट्यूसडे आ गया। तो 22 में हम 3 डेज और ऐड करेंगे, यानी 23, 24 और 25। ट्यूसडे के बाद दिस इज वेंसडे, दिस इज थर्सडे, दिस इज फ्राइडे। तो हमें पता चल गया कि 25th जो है हमारा फ्राइडे है। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इन दिस मैनर इन एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू सच अ सिंपल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन देगा 4 साल के बाद, 5 साल के बाद का डेट देगा, वो भी क्वेश्चन करेंगे। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। अब आप देखो 1 नवंबर 2022 ट्यूसडे है और आपको पता करना है 25 नवंबर। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में टोटल डेट्स कितने हैं, टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज। टोटल डेज कैसे निकालेंगे हम? टोटल डेज बिटवीन 25 नवंबर टू 1 नवंबर, 1 नवंबर, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, days between 25th November to 25th November। तो आप देख सकते हो कितने डेज है बेटा? 24 डेज आर देयर। आप सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक डे इंक्लूसिव होगा। 1 नवंबर को छोड़ के 2 नवंबर से स्टार्ट किया हमने और 25 नवंबर तक हमने जब काउंट किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 24 डेज आ गए। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इस 24 को 7 से डिवाइड कर दो, इसके ऑड डेज निकाल दो। 24 को 7 से डिवाइड करो और इसके ऑड डेज फाइंड आउट कर लो। इफ यू विल डिवाइड दिस 24 बाई 7, 7 3s are 21, 3 ऑड डेज यू विल गेट, 3 ऑड डेज। ये क्या आ गया? 3 ऑड डेज आ गया आपके पास। 3 ऑड डेज का मतलब क्या है? इस 3 को आपको सिंपली ट्यूसडे में ऐड कर देना है। 3 को क्या करना है? आपको ट्यूसडे में ऐड कर देना है। जैसे ही ट्यूसडे में आपने 3 ऐड किया, आपके पास क्या आ गया? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे इज द आंसर। वेरी सिंपल, फ्राइडे इज द आंसर। वही आपने जब सॉल्व किया था ये रिजल्ट आया था और ये रिजल्ट अब आपके पास यहां पे है। काइंडली टेक अ नोट ऑफ इट, kindly take a note of it, and if you have any doubt you may ask your doubts also। अब हम लोग करेंगे 28th। एक क्वेश्चन और करो। टेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट व्हाट वी हैव डन। सिमिलरली we'll take one more question। let us take one more question। If 1st November 2022 is Tuesday, find the day on, let us take 28th December 2022। Please do this question। 28th December 2022। Please do this question। What you have to do? Very simple approach। You will simply write November and December. How many days excluding first, there are total how many days in November? There are 30 days in November, dear students. You all know there are 30 days in November। 1st November you already know is a Tuesday, so you are not going to take 1st November into consideration। 1st November नहीं लेंगे, so remaining days in November you are going to take only remaining days in November। So there are 29 remaining days in November, and in December में कहां तक पता करना है? You have to go to 28th December। That means from 1st December to 28th December there are total 28 days। Now
सिंपली फाइंड आउट देयर ऑड डेज. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, इसके ऑड डेज फाइंड आउट करो. 29 को अगर इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 7, 7 4 28, 1 ऑड डे, और 28 को यहां पे 7 से डिवाइड किया, 0 ऑड डेज. लास्ट में फाइनली ये क्या किया मैंने, 25 दिसंबर तक पता किया, इसलिए मैंने सिर्फ 28 दिसंबर तक पता किया मैंने, जहां तक पूछा है. यानी टोटल ऑड डेज कितने हो गए, टोटल ऑड डेज हो गए 1 + 0, यानी टोटल ऑड डेज आई हैव 1. ये 1 कुछ नहीं करना है, ट्यूसडे में सिर्फ 1 ऐड कर देना है. ट्यूसडे में 1 ऐड करते ही मेरे पास कितना आ गया, वेडनेसडे आ गया. वेडनेसडे इज द आंसर. यू मे चेक एक्चुअल कैलेंडर ऑल्सो. 28th December happens to be a Wednesday. Happens to be a Wednesday. I'll take one more example. Yes beta, please tell. Sure. Please write down a question. If 4th February 2022, if, write down a question. February 2022, if 4th February 2022 is Friday, let us say, then find September 2022. Please do this question. 18th September 2022. Kindly do this using the concept of odd days. This is what you will do first. You will write down the month. कहाँ से कहाँ तक जाना है? We need to move from 4th February, dear students, 4th February to 18th September. Now, please pay attention. Kindly pay attention. I'll give you one more question so that you can understand the concept in a much better manner. 4th February, पहले तो ये देखो कि 2022 की बात चल रही है. 2022 एक ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है? तो हमने देखा एक ऑर्डिनरी ईयर है. तो ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में 28 डेज होंगे. 4th को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो रिमेनिंग डेज इन फरवरी, ये मैं यहां पे जो लिख रहा हूं रिमेनिंग डेज होते हैं. दीज आर द रिमेनिंग डेज. तो 28 - 4, व्हाट आई विल गेट? 28 - 4, आई विल गेट 24 डेज. 24 डेज. नाउ मार्च तो पूरा कंप्लीट करना है. अब फरवरी कंप्लीट हो गया, मार्च में आए. मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं. अप्रैल में 30 डेज होते हैं. मई में 31 डेज हैं. जून में 30 डेज हैं. जुलाई में अगेन 31 डेज. अगस्त में 31 डेज. और सितंबर में 18 सितंबर तक ही हमें पता करना है, तो वी विल राइट ओनली 18 फॉर सितंबर, क्योंकि 18 सितंबर का डेट पता करना है, तो 18th पे वी विल स्टॉप. अगर हमें 24 सितंबर पता करना होता तो 24 तक जाते. अगर हमें 29 सितंबर पता करना होता हम 29 तक जाते. सो दिस इज हाउ वी विल राइट डाउन. यहां पे क्यों लिखा? क्योंकि 4th फरवरी से हमें पता करना था. 4th फरवरी 2022 फ्राइडे है, तो 4th के बाद के जो डेज बचे हुए हैं, जितने डेज बचे हैं वो हमने लिख दिया. 4th के बाद यानी 5th ऑनवर्ड्स, 5th से लेके 28 तक देयर आर टोटल 24 डेज. अब कुछ नहीं करना है, इसके ऑड डेज लिखने हैं हमें बेटा. हमको सिर्फ इसके ऑड डेज लिखना है. ऑड डेज का मतलब क्या है? इनके ऑड डेज लिखते चले. या तो आप सबको ऐड करो, सबको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करो. दैट विल ऑल्सो give you the same result, but adding again will be a tedious task. सबको ऐड करके लिखना, क्योंकि you are dealing with big numbers. अगर आपको 1 से 6 के बीच में अगर लिखना होगा ज्यादा इजी होगा. 24 को अगर 7 से डिवाइड किया you will get 3,
31 को 7 से डिवाइड किया, अगेन 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, अगेन 3, 31, ये क्या कर रहा हूं, ऑड डेज 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है 7 2 14 एंड 4। अब इसको ऐड करना इजी है, आप ऐड कर लो सबको। 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 2 13 + 3 16 + 3 19 + 4 23। So there are total 23 days. Again divide by 7. Whenever you will get the result greater than 7, 7 से बड़ा जब भी आपके पास आंसर होगा, आपको क्या करना है, फिर से उसे 7 से डिवाइड करना है। कंप्लीट मैंने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड किया, 7 3 = 21 और 2 ऑड डेज आ गया। ये 2 कुछ नहीं करना है, ये 2 को सिंपली आप फ्राइडे में 2 डेज ऐड कर दोगे, सैटरडे संडे विल बी द आंसर। अब आपको समझाने के लिए मैं यहां पे 31 30 31 30 लिख रहा हूं, अदरवाइज एक बार समझ में आ जाएगा तो हमें सिर्फ इसका कोड, यानी 31 को 7 से डिवाइड करके क्या आता है, रिजल्ट 3 आता है। 30 को डिवाइड करके 7 से क्या रिजल्ट आता है, 2 आता है। 31 यानी ये सारे मंथ्स हैं और मंथ्स के टोटल डेज हमें पता है, उसको 7 से डिवाइड करने के बाद हम मेंटली कैलकुलेट करके सीधे लिख सकते हैं, तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। If you have understood, then again I am giving you one more question to solve. Kindly take a note of this. Next question. If 14th March 2021 was Sunday, let us say, then you have to find 25th August 2021. Quick. Same concept you have to apply. आराम से करना है, सिर्फ पहले मंथ्स को लिस्ट डाउन कर दो। मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वेरी सिंपल। अब मार्च में रिमेनिंग डेज, मार्च 31 डेज का होता है, 31 में से इफ यू सब्ट्रैक्ट 14 यू विल गेट 17 रिमेनिंग डेज। अप्रैल अगेन 30 डेज का है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 डेज का है, मगर 25 पे जाकर रुकना है हमें, तो हम लोग सिर्फ 25 तक ही जाएंगे, सिर्फ 25 तक। अब इसके ऑड डेज लिख दो। 7 2 14, 3 आ गया, 7 2 14, 6 आ गया, सॉरी 7 4 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा। टू 7 4 28, 3 2 3 4। अब सारे ऑड डेज, ये ऑड डेज है, ऑड डेज का सम कर दो। ऑड डेज का व्हाट यू हैव टू डू, ऑड डेज का सम करना है। सम करेंगे 3 2 5 3 8 2 10 3 13 और 4 17, 17 फर्दर डिवाइड बाय 7, 7 2 14, 3 इज द रिमाइंडर। ये 3 को कुछ नहीं करना है, इसमें ऐड कर देना है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे इज द आंसर। This is the answer. चलो अब ईयर स्किप करते हैं।
अब ईयर स्किप करते हैं, 4 साल के बाद का डेट फाइंड करना है, 5 साल के बाद के डेट फाइंड करना है, 15 ईयर्स के बाद का डेट फाइंड करना है, देन हाउ कैन वी डू इट? Please write down a question. Let us take today's date. 1st November 2022 ट्यूसडे है, तो आपको पता करना है 19th February 2029 ये फाइंड आउट करना है। सी आफ्टर 7 years का डेट हमें फाइंड करना है। ऐसे 20 years का हो जाए, 25 years का हो जाए, 30 years का हो जाए, आप फाइंड कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम सॉल्व, और बहुत प्यार से बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे? हमें ईयर्स लिखने हैं। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक जाना है? 2022 से फिर 23 पे हम लोग मूव किए, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 पे आ गए। वेरी सिंपल। अब देखो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट की बाद में बात करेंगे, जहां से बिगिन कर रहे हैं और जहां पे एंड कर रहे हैं। विल टेक इट लेटर ऑन। यू ओनली टेल मी, सिंस 2023 इज देयर, 2023 is an ordinary year or a leap year? You tell me whether it's an ordinary year or a leap year. It's an ordinary year. Yeah, it's an ordinary year. It's an ordinary year, and in ordinary year we know that in ordinary year there are 365 days, and 365 when divided by 7, what remainder we get? We get remainder 1. Similarly, in leap year we have total 366 days, and when divided by 7 we get remainder 2. So here what remainder we are going to get? 23. This 23 what I am talking about, this is 2023. This year is 2023. So this is ordinary year. If I divide by 7, total odd days will get 1. Similarly, in 24 is a leap year. Here odd days will be 2. 25 again ordinary year. So whenever you get an ordinary year, you will have 1 odd day, and whenever you will have a leap year, you will have 2 odd days. Simple. So 26 में कितना आएगा आपके पास? फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 2, और 29। अब 29 में हमें पूरा 29 कवर नहीं करना है, we have to cover till 19th February only. So we will consider, please try to understand, January 29th में only January and February we will cover. So January until 19th February we are going to cover, only 19th February. So in January how many days are there? In January there are total 31 days. 2029 I am talking about, 31 days. 31 divided by 7 give me 3 odd days. And February 19 days are there. 19 divided by 7, 7 2s are 14, 5 odd days. So these are the odd days. Only 2022 is left now. So 2022 में we have to consider only November and December. In November remaining number of days are 29. In previous questions also we have done. And in December there are total 31 days. 29 further divided by 7, 1 odd day. 31 divided by 7, 3 odd days. So these are the odd days. You need to just count the number of odd days. 1 plus 3 4 plus 1 5, 2 7, 7 3 10, 10 plus 2 12, 12 plus 3 15, 15 plus 5 20. So total 20 odd days divided by 7, 7 2s are 14, 6 is the remainder. This 6 you are going to add to Tuesday, and when you will add 6 to Tuesday, you will get Monday as the result. Tuesday plus 6, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday. Monday is the answer. So this is how you will apply the concept of odd days to find out the day. चाहे आपसे 5 साल 10 साल 20 साल के बाद का डेट पूछ दे, चाहे आपसे 5 साल 10 साल 20 साल पीछे का डेट पूछे, you can apply the concept of odd days to find out the answer. One more question will take. One more question.
Kindly take a note of this. If 4th October 2020 was Sunday, what day will be 10th January 2030? 10th January 2030. Very simple. क्या करना है हमें? 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लिख दिया. लास्ट वाला और फर्स्ट वाला बाद में हम देखेंगे क्या करना है. अभी 23 में कितने ऑड डेज होंगे? सिंस इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 1, लीप ईयर होगा तो 2, ऑर्डिनरी ईयर 1, 1, 1, 2, 1. 2030 में कहां तक जाना है? सिर्फ 10th जनवरी तक जाना है. सो वी विल कंसिडर जनवरी, एंड सिंस इन जनवरी देयर आर ओनली 10 डेज, सो 10 व्हेन डिवाइड बाय 7 विल गिव अस 3 ऑड डेज. तो 2030 में जनवरी के 10 दिन, उन 10 दिनों के लिए सिर्फ 3 ऑड डेज हैं. अब 2022 में 4th अक्टूबर हमें पता है. अक्टूबर हमारा अक्टूबर, देन नवंबर and then December. October happens to be of 31 days. So 31 minus 4, 27, November 30 and December 31. इसका further odd days 7 3s are 21, तो 6, 7 4s are 28, 7 4s are 28, so 3, 6 to 8, 3, 11. यहाँ पे 11 हो गया. 11 odd days when further divided by 7 you will get 4. So 2020 में we have 4 odd days, 23 में 1 odd days, 4 plus 1 5, 2 7, 3 10, 2 12, 1 13 and 3 16. So total we have 16 odd days. 16 divided by 7 will give us 2 odd days. So Sunday when added with 2 you will get Monday and Tuesday. So your answer is Tuesday. This is how you solve. The concept of odd days. I hope it's clear to everyone. Perfect. Kindly do one question on your own and then we'll end the class. Let us take today's date only. 1st November 2022 is Tuesday. Find tenth March 2025. Quick.
Yes, one student has given me the correct answer. Very nice. Very good. बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश. Very nice. That means you have understood the concept. Great. So 1st November 2022 Tuesday है, तो 22 की बात हो रही है, 23 की बात हो रही है, 24 की बात हो रही है, 25 की बात हो रही है. आपको पता है पहले हम ये लेंगे 23 में 1 odd day, 24 में 2 odd days. 25 में कहाँ जा रहे हैं हम? जनवरी जा रहे हैं, फरवरी जा रहे हैं और मार्च जा रहे हैं. जनवरी में कितने दिन है? 31 days, 3 odd days. फरवरी में ऑर्डिनरी ईयर है, 28 days, 0 odd day. मार्च में हम सिर्फ 10th तक जा रहे हैं, 10th मार्च तक, तो 10th मार्च डिवाइड बाय 7, 3 odd days. और 22 में हम कहाँ जा रहे हैं? 22 में नवंबर से जा रहे हैं, यानी नवंबर एंड दिसंबर. नवंबर में रिमेनिंग डेज आर 29, दिसंबर में रिमेनिंग डेज आर 31. आइदर ऐड द टू एंड देन डिवाइड बाय 7, और अलग अलग कर सकते हो. 7 4 28 तो 1, 7 4 28 तो 3. यहाँ पे कितना हो गया? 1 + 3 4 + 1 5 + 2 7, 3 10 and 3 13. 13 divided by 7, 6 is the remainder. So Tuesday में when you will add 6, you will get Monday as the answer. Monday as the answer. तो बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया था, and I'm glad that you all have learned the concept very properly. Very nice. So now we are about to end the class, but still the calendar topic is not yet over, dear students. We require at least 1 more hour to complete the entire topic. In the next class, whenever you will join me, I will teach you how to find out day without having any reference date. Suppose if somebody asks you, what we will learn in the next class, अगर किसी ने पूछा बताओ 15th August 1947 कौन सा दिन था? 15th August 1947 कौन सा दिन था? तो आप के पास कोई रेफरेंस डेट नहीं है, सिर्फ एक डेट पूछा है, बताओ 15th August 1947 कौन सा दिन था. देयर इज नो रेफरेंस डेट गिवन टू यू. आप मेंटली कैलकुलेट करके या थोड़ा कैलकुलेशन करके बता दोगे कि फ्राइडे था. आपसे किसी ने पूछा बताओ 26th जनवरी 1950 कौन सा दिन था? आप मेंटली कैलकुलेट करके बता दोगे कि ये दिन थर्सडे था. अगर मुझे किसी बच्चे ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया कि सर आई वॉज बॉर्न ऑन लेट अस से 5th April 2008, तो कैलकुलेट करके हम मेंटली बता देंगे कि ओके योर डेट ऑफ बर्थ वॉज ऑन ट्यूसडे. So this is what we will learn in the next class. For that, again, we need to understand few concepts. What are those concepts? Those concepts we will understand, we will learn in the next class. Let me just give you some glimpse of it. कुछ मैं बता दूं आपको. जैसे आज हमने लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर पढ़ा है, वैसे लीप ईयर के अंदर थोड़ा एक्सटेंशन और होता है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर, तो वहां पे ये डिविजिबिलिटी ऑफ 4 वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है. से फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर के केस में सेंचुरी लीप ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो 100 इज अ सेंचुरी लीप ईयर, 200 इज अ सेंचुरी लीप ईयर, 300 इज अ लीप ईयर. दीज आर द सेंचुरी ईयर्स, दीज आर बेसिकली सेंचुरी ईयर, बट दीज आर नॉट लीप ईयर्स. लीप ईयर कब होगा? अगर सेंचुरी ईयर है तो उसका लीप ईयर कब होगा? जब वो डिविजिबल बाय 400 होगा, डिविजिबल बाय 400 होगा. यानी 100th ईयर वॉज नॉट अ लीप ईयर. अभी हम 2022 में है. 2022 में कैसे है बच्चों? ईयर 1 से चलते हुए आ रहे हैं. कभी साल की शुरुआत हुई होगी, कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी, वो आप जानते हैं, एनी डोमिनी, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट. देन एनी डोमिनी कब से? सिंस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट को कैलेंडर ईयर 1 माना गया, और आज हम कहां पे हैं? 2022 में है. तो 2022 साल बीत चुके हैं. 2022 years have elapsed. तो ये क्या है? इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली
100th ईयर वॉज नॉट अ लीप ईयर, दैट मीन्स 100th ईयर जो जब रहा होगा तो 100th ईयर में 365 डेज ही थे। तो इसी तरीके से ऑल्दो 200 इज अगेन डिविजिबल बाय 4, बट इसमें 365 डेज ही थे। तो सेंचुरी ईयर के केस में यानी 400th ईयर जो था ये एक लीप ईयर था और इसमें हमारे पास टोटल 366 डेज थे। इसी तरीके से 800th ईयर ये हमारा लीप ईयर था और इसमें भी हमारे पास 366 डेज थे। ऐसे ही 1200th ईयर हमारे पास ये 366 डेज थे। इसके बीच में 500, 600, 700 ये सब 4 से तो डिविजिबल हैं मगर ये लीप ईयर नहीं थे। तो ये एक्सेप्शन है इन केस ऑफ लीप ईयर। और इसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी या फॉर दैट मैटर कोई भी डेट, अगर मुझे कोई बोले कि आप बताइए 14 अक्टूबर 845 कौन सा डे था, तो कैलकुलेट करके हम बता देंगे कि वो डेट थर्सडे था या वेंसडे था। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अनदर 1 more hour is required to understand the concept. From today onwards, I'm taking live classes on YouTube from 6 o'clock, 6 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग होगी क्लासेस की। The students who wants to learn math, the student who want to join these classes may contact Purnima ma'am. She will provide you the class link, class ID, and you all will understand, you all will learn math in a very proper manner. So dear student, my humble request to everybody, if you want to learn, if you want to understand the logical reasoning subject, please join these online classes. You will surely get a lot of benefit out of these. So thank you so much. I hope you have learned calendars topic in today's class and you will be able to solve question based on the concepts. So any question from any student? If you have any query, please ask. So thank you so much for joining. Dear host, please end the session. Thank you.